Hi, hello students. How are you all? Hope you all are fine. Okay, as you all know, we have started online classes. Yes, today ma'am will start with standard 4th grammar, and your first chapter is nouns. I hope you all know what are nouns, right? In previous class, we have learned what are nouns. We have learned two type of nouns, that is कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इसके पहले वाले क्लास में हमने नाउन्स किए हुए हैं। नाउन्स क्या होता है? यस, कैन एनीवन टेल मी? ओके, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। यस, बट बिफोर आई स्टार्ट माय चैप्टर आई वांट टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस। टेक अ नोटबुक, मेंटेन अ नोटबुक, okay, write the definitions, examples in your notebook, and after my each and every video you will get an exercise which you have to do in your notebook। वो आपको आपके नोटबुक में फिल इन करनी होगी with question answers। कोई भी क्वेरी हो, forward this video, retake it, वापस से देखो and again देखो, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। और उसके बाद जो पॉइंट्स मैम आपको बोलेगी इस वीडियो में आपको नोट डाउन करना है, ताकि वो पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहेंगे while you are doing your exercises। So we will start with the first chapter, that is nouns। We will do two type of nouns, that is proper noun and common noun। In this chapter you will learn two type of nouns and you will be able to identify common nouns and proper nouns। We will see what are common nouns and what are proper noun। I hope you all know what are common noun and proper noun। को पता ही होगा, nouns are naming words। Everything on this earth has a name। सब चीजों का कुछ ना कुछ नेम दिया गया है। हम हर चीज को किसी ना किसी नेम से बुलाते हैं, राइट? तो इन सब नेम्स को, नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहा जाता है। There are many type of nouns, but in this video we will learn two type of nouns, that is common noun and proper noun। I will show you some examples and definitions of common noun and proper noun। Hope you will understand it and note down in your book। So here you can see common and proper noun। Ma'am will show you a short story, but before that I will tell you to take a book। आप अपने साथ अपनी बुक ले लें, बिकॉज यहाँ पे मैम कुछ डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स देगी विच यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक, ताकि जब मैम आपको एक्सरसाइज दे तब आपको ये वापस पॉइंट्स आप रिकलेक्ट कर पाओ एंड एक्सरसाइज आप वापस कर सकते हो। सो लुक एट दिस वीडियो एंड मैम विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर कॉमन नाउन्स एंड व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स। At the end of this lesson, you will be able to identify common nouns, identify proper nouns, identify differences between a proper noun and a common noun. What is the Sunset Palace, Fleck? It is a beautiful monument that was built many years ago. Wow, Fleck! You're going to have a great time. Let's read the following sentences. Fleck has a friend called Roy. Edendown is a beautiful city. The Sunset Palace is an old monument. In these sentences, the nouns have been highlighted. A noun is a naming word that names a person, place, animal, or thing. The words friend, city, and monument are nouns. The words Roy, Edendown, and Sunset Palace are nouns. So I hope you all understand what Z and Flix are talking about.
यस, वो लोग एक प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स है, जहाँ पे कोई विजिटिंग गार्डन है, और वो किसके साथ जा रहा है, किसके घर जा रहा है, अपने फ्रेंड के घर। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फ्लिक्स हैज अ फ्रेंड कॉल्ड रॉय। फ्लिक्स का फ्रेंड है, उसका नेम क्या है, रॉय। एडिन टाउन इज अ ब्यूटीफुल सिटी। एडिन टाउन क्या है, एक ब्यूटीफुल सिटी। द सनसेट पैलेस इज एन ओल्ड मॉन्यूमेंट। सनसेट पैलेस है वो एक मॉन्यूमेंट का नेम है। ओके, द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसे कहते हैं, इट्स अ नेमिंग वर्ड व्हिच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। एनिमल, पर्सन, प्लेस के नेम्स को हम क्या कहते हैं, नाउन। तो इन सेंटेंसेस में यस, यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं, द नाउन्स आर हाइलाइटेड इन द सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में टू नाउन्स है जो कि आपको दिए गए हैं। यू कैन सी योर फ्रेंड इज अ नाउन, रॉय इज अगेन अ नाउन। फ्रेंड उसका फ्रेंड है, यस, रॉय बॉय का नेम है। देन एडिन टाउन एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है। इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। द सनसेट पैलेस, नाउ सनसेट पैलेस is a name of a monument. मॉन्यूमेंट को नेम दिया गया है सनसेट पैलेस। एंड मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, राइट, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, दे ऑल आर मॉन्यूमेंट्स बट दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक नेम। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। यहाँ पे किसका डेफिनेशन हमें दिया गया है, नाउन का। सो यू हैव टू नोट डाउन the definition of noun, that is a noun is a naming word that names a person, place, animal or thing। आपको यहाँ पे noun जो है उसका definition लिखना है and note down these sentences, okay, and underline the nouns in the sentence. Two, but they are special and different from the earlier ones. Let's see how. Let's look at the first sentence. The noun friend does not refer to a particular friend. It refers to all persons of the same kind or friends in general. Similarly, the nouns city and monument do not refer to a particular city or a particular monument. The word city may refer to a place anywhere in the world, and the word monument could be of any type. Such nouns such as friend, city, and monument are known as common nouns. So students, first sentences are the same but now the meanings are different. In the first half हमने देखा definition of nouns and हमने underline किया what are nouns like friend, Roy, Eden Town, city. These are nouns but they have different meanings. Now in the first sentence you can see Flex has a friend called Roy. Now friend is a name but not of a particular person. एक particular person का name नहीं है। Friends means friends बहुत सारे होते हैं, right? हमारे भी friends हैं। Friends बहुत सारे होते हैं। They are in common. वो किसी एक person को refer नहीं करते। They do not refer a particular person. So यहाँ पे कौन सा है, friend. Next is Eden Town is a city. Now city, अगर हम city तो city does not refer one city. वो भी एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। अगर सिटी है तो आपके माइंड में काफी सिटीज के नेम आएंगे, राइट? इफ मैम सेज कि सिटी, तो सिटी सोचकर आप किसी एक सिटी के बारे में नहीं सोच सकते। सिटीज में हम बहुत सारे सिटीज हमारे माइंड में आ सकती है, राइट? देन द सनसेट पैलेस इज एन ओल्ड मॉन्यूमेंट। नाउ मॉन्यूमेंट्स, जैसा कि मैम ने आपको कहा, वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, ताजमहल. These are all monuments. So monument B does not refer to a particular thing. एक particular thing नहीं है। यहाँ पे एक particular person नहीं है, right? Friend does not refer to a particular person. City does not refer to a particular place. And monument does not refer to a particular thing. यहाँ पे ना वो एक particular person के बारे में बात हो रही है, ना place, ना thing. इन चीजों को जो इन जनरल बात हो रही है, अगर फ्रेंड, फॉर एग्जांपल फ्रेंड, सिटी, मॉन्यूमेंट, जब इनको
वेजिटेबल्स, दे आर ऑफ सेम काइंड के होते हैं, बट दे आर मेनी इन नंबर्स, बहुत सारे होते हैं। अगर मैम आपको सिटी बोलेगी तो माइंड में बहुत सारी सिटीज आती है, राइट? देयर इज नॉट ओनली वन सिटी, सिटी रिफर टू मेनी सिटीज, हर एक सिटी को हम सिटी ही बोलते हैं, बट उनको एक नेम दिया गया है तब जाके वो अलग होते हैं। लेकिन सिटी वर्ड है वो कॉमन होता है सभी सिटीज के लिए। फ्रेंड है तो आपके फ्रेंड्स के अलग अलग नेम होंगे, बट वो सभी आपके फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड भी रिफर करता है बहुत सारे लोगों को, राइट? तो ये ऐसे जो वर्ड्स है उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। इट इज यूज्ड फॉर जनरल नेम्स। कॉमन नाउन किसके लिए यूज होता है? जनरल नेम्स के लिए, जो बहुत सारे होते हैं, जो वन होते नहीं है, जिनको हम अगर एक वर्ड बोले तो आपके माइंड में उस तरह के बहुत सारी चीजें आए तो वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन रिफर थिंग्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो इन कॉमन होते हैं, जैसे कि बोर्ड है तो आपको बहुत सारे सेम टू सेम बोर्ड्स मिलेंगे, राइट? तो वो भी किस में आता है? कॉमन नाउन में। क्लास के बेंचेस है आपके तो वो भी सेम टू सेम है, राइट? तो वो भी किस में आते हैं? कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन आर जनरल नेम्स ऑफ द थिंग्स के जो जनरल नेम है, हम बहुत सारी चीजों को एक ही नाम से बुलाए तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन। जहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि फ्रेंड, सिटी, मॉन्यूमेंट्स, दीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। ये कौन से नाउन्स है? कॉमन नाउन। आई होप कॉमन नाउन इज क्लियर। यस, जनरल नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जनरल नेम्स को, जो बहुत सारे हो। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे फ्रेंड, सिटी, मॉन्यूमेंट, विच डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को पर्टिकुलरली नहीं बिलोंग करते उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। नाउ आई शो यू द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। As they do not refer to any particular thing, person, or place. So, a common noun is a general name for the same kind of things, persons, or places. Common nouns do not refer to any particular thing, person, or place. Common nouns are spelled in small letters. Always remember that common nouns do not begin with a capital letter. So, here is the definition of common noun. Common noun is a general name for the same kind of things, person or place. Same kind of things के general names को हम क्या कहते हैं? Common noun. Note down the definition in your notebook. Alright? So, and underline the points. Common noun क्या है? General name of a person, place और thing, जिनके एक जैसी चीजें बहुत सारी हो, सेम काइंड की। जैसे कैट, तो कैट, ऑल कैट्स आर कॉल्ड कैट। लायन, ऑल कैट्स आर, ऑल लायंस आर कॉल्ड लायंस। उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स नहीं होते, वो सेम काइंड के हैं, राइट? फ्रूट्स में एप्पल है, वो बहुत सारे एप्पल्स होते हैं, हम सभी को एप्पल से बुलाते हैं, हम डिफरेंट नेम्स को नहीं बुलाते, तो दे आर ऑफ सेम काइंड। फ्रेंड, तो फ्रेंड कैन बी एनीवन, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है। तो इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्सन के लिए हम रिफर नहीं कर रहे। वो वर्ड बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। जो चीजें बहुत सारे लोगों के लिए यूज होती है वो होती है कॉमन नाउन। तो हियर इज द डेफिनेशन एंड सम पॉइंट्स टू नोट डाउन। कॉमन नाउन्स डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग, वो कोई भी एक चीज के लिए रिफर नहीं करती, वो बहुत सारी चीजों के लिए रिफर करती है। एंड सेकेंड थिंग इज कॉमन नाउन इज स्पेल्ड इन स्मॉल लेटर्स, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं इसीलिए हम उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। वी डू नॉट राइट इट विद अ कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, दे ऑलवेज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर, वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं। सो आई होप कॉमन नाउन इज क्लियर। यस, ओके। For example, the words friend, city, and monument start with small letters F, C, and M. You must not confuse a noun with a word that tells you something about a noun. For example, in the sentence, Edentown is a beautiful city, the word beautiful describes the common noun city. Therefore, beautiful is
बताता है कि गुड है, बैड है, टॉल है, शॉर्ट है, हाउ इट इज. सो इट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स को कहते हैं. एडजेक्टिव्स वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास, राइट. एडजेक्टिव मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करता है. तो आपको कॉमन नाउन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डू नॉट कंफ्यूज अ नाउन विद अ वर्ड दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट अ नाउन. आपको कोई वर्ड अगर नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है. डू नॉट कंफ्यूज अ नाउन विद अ वर्ड दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट अ नाउन. अगर आपको नाउन के बारे में कोई कुछ बता रहा है दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो वो नाउन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एडिट टाउन इज अ ब्यूटीफुल सिटी. नाउ सिटी इज अ कॉमन नाउन, राइट, बट कैसी सिटी है? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल इज एन adjective, it is a describing word, it is not a noun. Sunset Palace is an old monument. तो यहाँ पे monument is a common noun. monument बहुत सारे होते हैं, right? city बहुत सारी होती है, तो ये common noun है. लेकिन वो monument कैसा है? old. तो old is here a describing word, it is not a noun. Let's see. Therefore, it is not a noun. We already know that the words friend, city, and monument are common nouns. Now, let's learn more about the other type of nouns. So, I hope आपको common noun clear होगा. Yes, in this video we have learned about only common nouns. What are nouns? Nouns are naming words. Yes, what are common noun? Common noun are names of general things that does not belong to a particular person, place or thing. जो किसी particular इंसान के लिए नहीं होता है, वो in common हम सबके लिए यूज करते हैं. ऐसे words को हम common noun कहते हैं. And common noun is not a describing word. Describing words adjective होता है जो noun के बारे में हमको बताता है. So I hope you have note down the definitions and you have to note down the examples also. इस वीडियो को वापस से बैकवर्ड करें और एग्जाम्पल से अगर नोट डाउन करें ताकि आपको एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल होगा. In my next video, I will teach you what are proper nouns. Till then, stay home, stay safe.